Hello students, welcome to all in our chemistry class, and I hope you are well at your home. And today we are discussing about the first chapter of the chemistry, and here is the first chapter of the chemistry is solution. Okay, so students, today I am telling you the basic concept of the chapter. Okay, so first we are just going through the contents of the chapter, means what we are going to discuss in this particular chapter. So here, as the name is indicated, solution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. ठीक, तो मैं इसको आपके आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो हियर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, सेकंड वन इज कंसंट्रेशन टर्म्स. This is very important topic of this chapter. Okay, concentration terms, and it will include this much of the topics in that. Concentration means normality. This is also the concentration means whatever be the substance it in a particular amount is dissolved in it. ठीक है, कंसंट्रेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सॉल्यूशन में बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगी. तो बस आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन जो टर्म्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी. व्हाट इज नॉर्मलिटी ओवर है? मोलरिटी. मोलरिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी, मोलेलिटी. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, देन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, मीन्स परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू कैलकुलेट द हाउ वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज. नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन. ठीक, this one is the concentration terms, ppm. Okay, next is mole fraction. Next one is you just find out the relation between molarity and normality. Capital M is over here molarity and capital N is over here normality, and then you just find out the relation between small m, that is molality, and mole fraction. Okay, then beside that, after the concentration term, you just go through the topic of the solubility. Okay, in that the main basic concept is about the Henry's law. You just find out that what do you mean by Henry's law, what are its application. So you just going to be studied this topic in a particular this topic, solubility. Okay, Henry's law. Next one is vapor pressure, and generally you are discussing about the vapor pressure of the liquid mixture. Okay, और यहाँ पे जो आपको सबसे important जो याद करने वाली चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, यहीं पे एक टर्म आपका ओरिजिनेट होता है, एक लॉ यहाँ से निकलता है, वो है राउल्ट्स लॉ. ओके, तो राउल्ट्स लॉ इज द मेन और बेसिक कंसेप्ट. every year the most of the question were asked from this topic. Okay, vapor, that is vapor pressure. Okay, next one is colligative property. This is also the very important chapter of this important topic of this chapter. Okay, next one is abnormal colligative property. So one by one I am just going to be tell you the about this topic, that what do you mean by this introduction terms. So students, now I am just telling you that what do you mean by the term solution. Okay, so here is the, you can see on a blackboard, here is the definition of the solution. So what is solution? So solution is the homogeneous mixture of 2 or more components. Okay, so as you see that in this particular definition I am just highlighting these 2 words, homogeneous mixture and components. ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, मिक्सचर को हमने जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, फर्स्ट इज होमोजीनस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक, अगर बेटा मैं आपको सिंपली वे में अगर डिस्क्राइब करूं दैट व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस और हेट्रोजीनस, तो लेट अस टेक द एग्जांपल. जैसे यू जस्ट टेक 1 glass ऑफ वाटर एंड जस्ट ऐड 1 teaspoon ऑफ शुगर. ठीक है, एंड जस्ट डिजॉल्व इट. आपको कुछ चेंज मिलेगा? नहीं, कोई चेंज नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल्स आर टोटली डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मीन्स इन अ वाटर. ठीक, तो आपने क्या देखा, चाहे आप कितनी भी शुगर उसमें ऐड करो, शुगर के क्रिस्टल्स आपको नहीं दिखेंगे, वो पर्टिकुलरली क्या हो जाएंगे,
डिजॉल्व हो जाएंगे, मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन द टू ऑफ द मीन्स कंपोनेंट्स। ठीक, अब कंपोनेंट्स क्या है वो हम अभी थोड़ी देर से देखेंगे। तो आपने देखा जब आप किसी सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हो वो पूरी तरह से क्या हो जाए, मिक्सिबल हो जाए, मीन्स वी कांट सेपरेट द टू थिंग्स। ठीक, तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इन दिस नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इज विजिबल, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इज विजिबल। ओके, नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस लेके देखें, जैसे कि सपोज आप मान लीजिए आपने ऑयल लिया और वाटर लिया, अब आपने उसको मिक्सअप किया, क्या दोनों पूरी तरह से डिजॉल्व हो पाएंगे? नो, आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम ऑयल जो है वो ग्लास के ऊपर आ जाएगा और पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे। मीन्स यू जस्ट फाइंड आउट द डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। आपको एक क्या हो जाएगा, सेपरेट बाउंड्रीज विजिबल हो जाएगी। ठीक, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक, तो मीन्स विजिबल डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इज देयर। ठीक, ये बात आई समझ। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, आपने ऐसा देखा होगा, सॉल्यूशन हमेशा आपने ऐसा देखा होगा जैसे आप नींबू पानी बनाए, चाहे आप कोई भी एक सॉल्यूशन बना ले। ठीक, जैसे आपने इंक और वाटर ऐड कर दिया तो आप वहाँ देख सकते हो, आप सिर्फ वहाँ इंक देखोगे, आपको वाटर विजिबल नहीं होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ पर्टिकुलरली टू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स की बात आएगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंपोनेंट्स इज हेयर, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में इस चीज़ को डिस्क्राइब करें तो सॉल्यूट क्या है, आप लोग कहते हैं जैसे हमने एक शक्कर पानी में घोली तो शक्कर क्या हुई, मतलब जिस चीज़ को, जिस सब्सटेंस को, द पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज डिजॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, डिजॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। सो जो हम सब्सटेंस डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, आपका सॉल्यूट, और जिसमें जो चीज़ आपकी घुल रही है वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया, बट अगर हम इसको केमिस्ट्री में डिस्क्राइब करें तो कैसे हम इसको बोलेंगे, तो सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हेन इट इज मिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस देन इट विल लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, अ सब्सटेंस विच लूज देयर प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक ग्लास वाटर आप ले लो और उसमें शुगर को डिजॉल्व कर दो, पूरी तरह से शुगर डिजॉल्व हो गई, मतलब जो शुगर सॉलिड में थी वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई, गायब हो गई। ठीक है, तो मीन्स उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, उसने अपनी स्टेट को लूज कर दिया। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसमें शुगर मॉलिक्यूल है नहीं। अगर आप टेस्ट करके देखेंगे उस सॉल्यूशन को देन यू विल फाइंड द टेस्ट एज अ शुगर। ठीक, आपको कैसा मिलेगा, मीठा स्वाद मिलेगा, दैट मीन्स उसमें शुगर तो है बट उसने अपनी प्रॉपर्टी, आप फिजिकली उसको नहीं देख सकते, इट कांट बी विजिबल। क्यों, क्योंकि वो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुके हैं और वो वाटर के मीडियम में पूरी तरह से, मीन्स उसमें पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो अमाउंट है, वो सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर सब्सटेंस में मिलने पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं। ठीक, जैसे कोई भी आप सब्सटेंस लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, अगर आप उसको मिक्सअप कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक, अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट, पहली बात तो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, और सॉल्यूट कैसा होगा, हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्वेंट क्या है, इट डजंट लूज देयर प्रॉपर्टी। जैसे आपने शुगर और वाटर ऐड किया तो वाटर ही रहेगा ना, एट द एंड अगर आप देखोगे तो वाटर यू विल फाइंड द इन अ ग्लास सिंपली वाटर। ठीक, तो सॉल्वेंट इज द पर्टिकुलर सब्सटेंस विच डजंट लूज देयर प्रॉपर्टी। ठीक, तो आई होप यू कैन अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड दिस वन इज द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई हो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डेफिनेशन। ओके, सो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो अब अगर हम उन सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हम उनके बेसिस पे अपने सॉल्यूशंस को टाइप्स दे सकते हैं, ठीक। जैसे 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो आप उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो आप बोलोगे टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर में हमने फिक्स नहीं किया है, मिक्सचर में हम 1, 2, 3, 4 कितने भी सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बनाना चाहते हो चावल अगर आपने बनाया तो उसमें क्या है, चावल और पानी है, ठीक। वहीं अगर उसमें दाल भी इंक्लूड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, खिचड़ी का फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो मीन्स मिक्सचर है, मिक्सचर में कभी हम कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते, इट इज़ वेरिएबल, ठीक। तो उसी बेस पे हम लोग सब सॉल्यूशन को जो है बेसिकली कैटेगरी में डिवाइड किया है, बाइनरी, टर्नरी, टेट्रानरी, क्वाटरनरी। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकते हो, ठीक। यहाँ मैंने लिखा है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, 2 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ओके। तो समझ आया होगा। अब हमने इस चैप्टर में कुछ टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। जैसे मोल्स क्या होता है, मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास क्या होता है, किस तरह से निकाले जाते हैं, और मोल फ्रैक्शन। तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट के लिए हमेशा B मान के चलिए, क्या मान के चलेंगे, B, और सॉल्वेंट के लिए क्या लेके चलेंगे, A, ठीक। जैसे कि अगर आप मोल्स लिखना चाहते हो, ठीक, तो मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करोगे, किससे, स्मॉल n से, और सॉल्वेंट के मोल्स को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करोगे, ओके। नेक्स्ट, आप मास अगर आप लिखना चाहते हो तो स्मॉल w इज रिप्रेजेंट फॉर सॉल्यूट एंड कैपिटल W इज रिप्रेजेंट फॉर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, मोलर मास, small m is represent for solute and capital M is represent for solvent. Next, mole fraction xb, mole fraction is denoted by capital X, और यहाँ पे xb जो है वो आपका solute के mole fraction होगा, और xa जो होगा वो solvent के mole fraction के बराबर होगा, ठीक। तो इतनी बात आई समझ आप लोगों को, ओके। So here is the term for we are using for the solute and solvent. So student, with this we have ended our topic and we just cover the new topic concentration term in our next class. If you have any queries, ask in the comment section below. Like and subscribe to our YouTube channel. Thank you.